Today I am going to give you 3 mantras. Okay, 3 mantras which will help you to change your whole perspective about the stress, why and when you should take stress seriously, and how to change distress to eustress. That I will explain later on, what is distress and what is eustress, connection between change and stress, whether they are connected or not, and why should you welcome change, and then ABC of change. This is the strategy which I have created, which you will not find even if you Google. Okay, and that is my copyright, and this will help you to deal with change in any field and any time. And then application of ABC of change, where I will be explaining you the second process. Right now, there are certain norms for the session so that it goes on smoothly. You have already taken care of that there is no disturbance, means not background sounds and all, so that all other participants can hear clearly. Then I would have loved if you could open your camera and because the participation becomes more engaging and lovely. Respond freely. Please feel free. If you have any questions, you can ask, and if there are many more questions, then what you can do, you can later on mail to me for the clarification, or if we have time, we can have a discussion after that. Yeah, great, Vinona. Right. Then we have, you have to mute the speaker, but you can use your space bar to communicate whenever you have to, and then stay awake. Because ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना फोटो यहाँ पे लगा के सो गए हैं. Okay. So then after we finish 1 hour of my talk, you will write an exam. Question paper will consist of 5 questions. Each question to be answered in detail. Questions are compulsory. Questions must be attended in the same sequence as they appear. Each question carries 10 marks. Passing marks 30 by 50. And use only blue or black pen. Vinona, tensed? I know. You are already stressed by now. Are you? How many of you feel stressed, right? Because exam is there, right? Who else is stressed? Yeah. I am. I barely passed my undergraduate. Yeah. So I was just joking. There is no exam. I just wanted to tell you that how small things make us tense. Okay. Actually, even the things which are not going to happen, we just assume that they are going to happen, and they just begin to create stress. So just relax. There is no exam. Okay. Now, we will come to what actually we have, what is actually stress. So let us begin. What is stress? Can you tell me, how do you perceive stress? In your opinion, how it looks like? Discomfort. Stress, how do you perceive? How do you see stress? Yeah, so like you feel discomfort while like doing everyday things, like you're not there. Why do you think the stress comes from? Where it comes? Hello. Hello. Yeah. Yeah, ma'am. By taking unwanted tension. Okay. Anybody else? Maybe the feeling that we will not be able to deal with the situation. Exactly. Good. Anybody else? Maybe people's responsibility, like the responsibilities we carry towards people. Okay, good. 100%. Also thinking about how somebody perceives us, like if we make a decision or if we do something, how are we? Lack of choice. Okay, it means simply as Rosni said, that is log kya kahenge wala, how people will respond to our decisions that way. Also the fear of failure, man, like the fear to try something and fail. Okay, that's great. So I have got quite few responses. It's good. Actually, the stress, that is Stephen Palmer, Professor
Stephen Palmer is the chairman or the founder of Center of Stress Management. If you search on Google, you will find a lot about the Center of Stress Management and all. He says that stress is the physical or psychological and response of an individual. Situation demands from them or the demands placed upon them, and their ability to fulfill that demand. Okay, so that can be in the relationships, it can be in the work, it can be in the studies or any other matter. So whenever there is a gap between, if there is a demand and you can fulfill that demand, will there be any stress? No, There won't be. Yeah. There won't be. Suppose you are given a task, okay, and you are free for the whole day and you are given to make a PPT which is going to require you 2 hours. So easily you will make it if you know how to make it, right? And if you are scoring easily 60-70% and you are expected by the parents or the teachers that you should get 65%, 68%, that is well within your zone. So will it create any stress? आप बोलो यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, I'll do it. होगा? So when the stress will come, when the demand and ability, they do not match. Okay, and when it consistently goes on gradually, that leads to ill health. जब आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? Either the demand has to be reduced or the ability has to be increased. दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, या डिमांड को नीचे लाना पड़ेगा या आपको अपनी एबिलिटी को ऊपर करना पड़ेगा. ठीक है? So understood how the stress is created, what causes the stress. Now, is stress good or bad? What do you think? Can be both. Actually, both, ma'am. Like, it's upon how we take it. If we take it in a good way, we might improve. If we take stress in a negative way, we might hamper our health and maybe our relations with people, many things like that. Very good. You can leave. You can leave now. You already know what to do. Okay. So, anybody else? It's bad. It's never good. Like when you're stress free, you can work like with like 2x speed. But like if you have stress, it is always going to hamper you. Okay. Who is speaking? I'm Mohit, and I'm actually like even I've faced a lot of stressful phase right now. Okay. So Okay, Mohit. And now after once this session ends, you will see no stress or no problem. Okay. You will be able to deal with everything. That's good. So stress is right now I will focus, explain later on. And right now we must understand only this, that stress can be good and stress can be bad also. Now we come to how to identify the stress. How the symptoms can be so many symptoms the stress has. When you go for the exams, if you have already passed your age from the exam, school age and something, and you are already working, or you are just completed your graduation or studies, or for the teachers, those, or if you are applying for the job, so and during the interviews, have you ever felt that in your stomach something happens when you are about to appear for the interview and interviewer in facing interviewer, or you are going to write the exam? पेट में कुछ गुड़गुड़ सा फील होता है? Yes. Yeah. Yes, ma'am. Yes. Very much. Very much, right? So वो जो है वो हमें लगता है पता नहीं क्या हो रहा है. और sometimes have you felt कि जब आप स्ट्रेस होते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे भूख ही नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, होता है ऐसा? होता है मैम, सिर भी दुखता है. Yes, yes. सर भी दुखता है. तो आप जो कहते हैं ना, जो पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं, ये पता नहीं कुछ नहीं होता, ये पता नहीं जो होता है, ये स्ट्रेस होता है. ठीक है? Stress होता है. So वो जो है वो स्ट्रेस है. तो you can have headache, you can have even stomach ache. ठीक है? हालांकि स्ट्रेस हम ब्रेन से करते हैं, लेकिन इससे आपको पेट में भी दर्द हो सकता है, पेट इवन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका फैटीग हो सकता है, बहुत थकावट बिना रीजन के आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं. यू कैन हैव स्वेटी पाम्स, आपके हाथों में पसीना अचानक से छूटने लगना, फेस पे पसीना आना. ठीक है? एंड देन हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, एकदम से पल्पिटेशन होना, नींद बहुत ज्यादा आना या नींद बहुत कम आना, दोनों चीजें हैं. ऐसे ही भूख बहुत कम लगना या फिर भूख
ऑल ऑफ सडन बढ़ जाना, आप हर वक्त आप बिंज ईटिंग करते रहते हो, कुछ ना कुछ खाते रहते हो, तो उस टाइम आप क्या कर रहे हो, आप अपने स्ट्रेस से कोप करने की कोशिश कर रहे होते हो. एंड लैक ऑफ फोकस, आपका फोकस हो जाना, आप कुछ भी चीज, आपकी इवन आपकी फेवरेट चीज जो है वो भी आपका मन उसमें नहीं लगता है. सपोज जैसे कोमल है, कोमल को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, वो मुझे मालूम है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस्ड इसमें होगे तो आपका क्रिकेट में भी मन नहीं लगेगा. और मूड स्विंग्स होते हैं, आप एकदम कंपल्सिव बिहेवियर होता है, ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है, या एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है. एकदम शांत पर्सन भी क्या होगा कि कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाएगा और आपको लगेगा अरे इसको क्या हो गया, है ना. और ऐसे ही जो बहुत एग्रेसिव है, बहुत, या फिर जो बहुत एक्टिव है, वो अचानक से एकदम शांत हो जाता है और हमारे दिमाग में फिर आता है कि अरे यार इसको क्या हो गया. तो यहाँ पे है ये कुछ न कुछ क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर हमारा स्ट्रेस बिल्टअप हो रहा होता है. वेट गेन होता है बहुत ज्यादा, या वेट लॉस होता है, दोनों चीज है. साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द स्ट्रेस, आप सोशली, आपका मन करता है कि आप सबको छोड़ छाड़ के भाग जाओ, अपने सारे सोशल हैंडल्स डीएक्टिवेट कर देते हो, आपका फेसबुक से गायब हो जाते हो, इंस्टाग्राम से गायब हो जाते हो, आपका मैसेंजर ऑफ हो जाता है, लोग आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप उनके लिए अवेलेबल नहीं होते हो. ये सारे के सारे स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं. अब ये कि व्हाई शुड यू टेक स्ट्रेस सीरियसली. सब जगे हुए हो? हाँ मैम, एकदम जागे. कोमल तो Yes. जगा हुआ है, बाकी सब जगे हुए हैं. ओके, Yes, ma'am. ठीक है, इसीलिए कहा था कि चेहरा दिखाते रहो. ओके. मैम तैयार हो रहा हूँ, चेहरा दिखाता हूँ थोड़ी देर. नहाया नहीं है. नहाया हूँ मैं. ओके, ठीक है. दिस इज द सी. क्या है कि जो वाई आपको सीरियसली क्यों लेना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने सर्वे किया, उनके हिसाब से जो 82% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है, दे आर हैविंग हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस. वो भले ही एडमिट करें इस बात को या ना करें, बट दे सर्टेनली हैव stress levels, high stress level, and this stress is maximum between the age group 35 to 49 years of age. अब जो यहाँ पे 39 के नीचे वो कहेंगे हमें भी स्ट्रेस होता है, या आई नो, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस के रीजन सबके डिफरेंट हैं, दैट आई विल डिस्कस. तो जो 35 टू 49 इयर्स का एज ग्रुप है, या फिर हम कहेंगे आजकल तो और ज्यादा है, 20 से लेकर 49 हम कह सकते हैं कि ये जो मेजर एज ग्रुप है, कोर ग्रुप है हमारा, ये मेन ड्राइविंग फोर्स है इंडिया की. तो आप लोग तो इंडिया के पायलट्स हो, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द स्ट्रेस. And when you are driving the maximum business, you are doing all the innovative ideas, you are doing all the jobs and all the businesses, then ऐसे समय में क्या है कि if this age group is stressed, this is not good neither for the person, वो तो है ही नहीं उनके लिए, but not even for the country. क्योंकि ये जो आपकी प्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो आप है, वो प्रोडक्टिविटी को स्ट्रेस खत्म कर देता है. सो इट इज अ मेजर कंसर्न फॉर अस, व्हाई यू शुड टेक इट सीरियसली. एंड यू मस्ट हैव हर्ड, न्यूज में अक्सर आता रहता है कि आज ये बिल्डर ने सुसाइड कर लिया, वो सेलिब्रिटी ने सुसाइड कर लिया. तो हमें तो लगता है हम तो कॉमन मैन है, सारी प्रॉब्लम हमारे साथ है, लेकिन इवन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग सेलिब्रिटीज हैं, जिनको पब्लिक लाखों फॉलोअर्स है, ऐसे लोग भी सुसाइड कर लेते हैं. क्यों सुसाइड कर लेते हैं? बिकॉज ऑफ दैट हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज दे फील दे कांट एडमिट इट, दे आर, लोग उनके बहुत सारे देखने वाले हैं, लोग उनको चाहने वाले हैं, और उनके लिए ये चीज को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट हैज टू बी टेकन सीरियसली. एंड इफ वी लुक एट मेन एंड वुमेन, अगर हम उसको बाइफरकेट करें मेन और वुमेन में स्पेशली, तो 85% ऑफ मेन एंड 82% ऑफ वुमेन, दे आर stressed. And out of these, for both of them, 5% of men and 5% of women, they are with the जो unmanageable stress है. There are two types of stress, एक manageable stress होता है, unmanageable stress होता है. तो they are undergoing through unmanageable stress. That leads to serious concerns later on. And there is Cigna 360, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो Cigna 360 वेलबींग आपको वहाँ पे मिल जाएगा. दे कीप ऑन कंडक्टिंग सर्वेस. तो उन्होंने जो सर्वे कंडक्ट किए हैं, उनके हिसाब से इंडिया रैंक्स अबव 5 मेजर कंट्रीज. कौन कौन सी? यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया. इन 5 कंट्रीज से भी ऊपर इंडिया का स्ट्रेस लेवल है. जो इंडिया के लोग हैं, उनका स्ट्रेस लेवल इनके ऊपर है. तो आप समझ सकते हैं कि क्यों जरूरत है
कि हमें स्ट्रेस के ऊपर या इस तरह की जो वर्कशॉप्स हैं या इस तरह की जो सेशंस हैं वो हमें करने की जरूरत है, या हमें खुद अपने फ्रेंड्स तक पहुंचने की जरूरत है, या किसी भी जिसकी जो भी हमें हेल्प कर सकता है उस तक पहुंचने की हमें जरूरत है। इसलिए नाउ बिफोर वी लर्न अबाउट चेंज, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो स्ट्रेस के बारे में तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसको मैनेज करना क्यों जरूरी है। अब इसको कैसे मैनेज करना है ये मैं बताऊं, इससे पहले हम आएंगे चेंज को समझते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज और स्ट्रेस दोनों के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो अबाउट इट? Me. Okay, who will repeat my last sentence? How many change. of Last you sentence want क्या to था? learn about it? Okay, इसके लास्ट पैराग्राफ में मैंने क्या कहा था? सागनिका, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ, what was I discussing? How many people in India are under stress in general? Okay. 85% of men and 82% of women. Wonderful, that's great. इसका मतलब सोए नहीं हो। Once a teacher is always a teacher. पता रहता है पीछे क्या चल रहा है ना? Okay. So we come to change. Can you see the screen? Yes, ma'am. मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, it's visible. Yeah. So change, जो change है ना, चेंज कैसा है? चेंज दो तरह का होता है, ठीक है? कौन कौन सा? एक तो होता है एक्सपेक्टेड चेंज और एक होता है अनएक्सपेक्टेड चेंज। एक्सपेक्टेड चेंज कौन सा? लाइक हमें पता है आज अभी सुबह हुई है, दोपहर में हम अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं, अभी शाम को हमने सब भूल जाना है ना? नहीं, मजाक कर रही हूँ। ओके, सो एक्सपेक्टेड ये है कि इवनिंग होगी और उसके बाद रात होगी तो अंधेरा होगा और अगले दिन सुबह होनी है और उसके बाद फिर शाम होनी है, ये एक्सपेक्टेड है कि नहीं है? अब अनएक्सपेक्टेड कब हो जाएगा? कि जब ये दिन ढले ही ना और आपको 9 बजे तक उजाला मिले तो क्या होगा? वो अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड वो हमारे लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, कई सारी कंट्रीज में 6-6 महीने तक नहीं ढलता है दिन, वो तो उनके लिए वो एक्सपेक्टेड है कि नहीं है? लेकिन अगर इंडिया में ऐसा होने लगे तो हम कहेंगे अरे बाप रे क्या हो गया आज। ठीक, तो चेंज एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है, और जो एक्सपेक्टेड चेंज है दैट इज आल्सो ऑफ टू काइंड। इट कैन बी वांटेड एंड डिजायर्ड चेंज और इट कैन बी अनवांटेड एंड अनडिजायर्ड चेंज। एक्सपेक्टेड में भी तो जरूरी नहीं है ना कि वो वांटेड ही हो या डिजायर्ड ही हो, ठीक है? अब वांटेड क्या है? एक्सपेक्टेड में वांटेड डिजायर्ड क्या है? वांटेड या डिजायर्ड? कैन यू गिव मी वन एग्जांपल कि चेंज इज एक्सपेक्टेड एंड इट इज डिजायर्ड चेंज? Getting a good job. Wonderful. Getting married with a good family. God bless you. You will soon. Okay. Anybody else? एक एग्जाम्पल तो हो गया गेटिंग अ जॉब, श्योर। गेटिंग मैरिड, करेक्ट, ये एक्सपेक्टेड भी है, वांटेड भी है, करेक्ट। एनीबडी एल्स? Like expecting when you're studying, you expect, okay, I will get this much of a percentage or this much of marks, and sometimes you get it or sometimes you get more than that. So एग्जैक्टली, करेक्ट। तो जितना आपको एक्सपेक्टेड था वो तो एक्सपेक्टेड हो गया, उससे ज्यादा मिल गया तो वो क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड हो गया। कई बार तो माय गॉड इतना तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ज्यादा भी। और कई बार होता है मैंने तो 80 एक्सपेक्ट किया था, यहाँ तो 60 आया, कैसे? करेक्ट, तो वो अनवांटेड हो गया, अनडिजायर्ड हो गया। अभी अनएक्सपेक्टेड में क्या है? अनएक्सपेक्टेड आल्सो कैन बी वांटेड एंड डिजायर्ड एंड अनवांटेड एंड अनडिजायर्ड। अनएक्सपेक्टेड वांटेड डिजायर्ड क्या है? आपने एक इंटरव्यू, हाँ बोलो। Doing better than what you deserved, और like अगर कम पढ़ा और ज्यादा मार्क्स आ गए। एग्जैक्टली, तो क्या है? अनएक्सपेक्टेड है लेकिन डिजायर्ड है, बहुत खुश होते हो, है तो अनएक्सपेक्टेड, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू खराब हुआ, आपको उम्मीदें नहीं है, लेकिन सिलेक्शन का लेटर आ गया, तो क्या है? Unexpected. अनएक्सपेक्टेड है बट डिजायर्ड है, वेलकमिंग है। Yes. एंड देन अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड, एक्सपेक्टेड भी नहीं है और चाहिए भी नहीं, ठीक है ना? क्या हो सकता है ऐसा? जैसे कोरोना, किसी ने एक्सपेक्ट किया था जनवरी में, दिसंबर में? नहीं किया था,
और भी आ गया है, लेकिन चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए मैम। नहीं चाहिए ना। तो No. अनडिजायर्ड भी हो गया और अनएक्सपेक्टेड भी हो गया। अब हमारी जो प्रॉब्लम है, देखो मैंने इसको 2 कलर में किया हुआ है। क्यों 2 कलर में किया हुआ है? ग्रीन में और रेड में। तो जो एक्सपेक्टेड है, वांटेड और या अनएक्सपेक्टेड है, वांटेड और डिजायर्ड है, तो वो क्या करेगा हमें? दैट स्ट्रेस विल बी विच टाइप ऑफ स्ट्रेस? आइदर एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड बट डिजायर्ड। Eustress. यूस्ट्रेस, दैट इज द गुड स्ट्रेस। ठीक है ना। अब आप कहोगे जब मन की बात हो गई तो फिर स्ट्रेस कहाँ से आया है? किसी ने पूछा नहीं मुझसे ऐसा? पूछना चाहिए था कि भले एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है, पर वांटेड है, पर डिजायर्ड है, तो फिर इसमें स्ट्रेस कहाँ से आ गया? ये तो खुशी होनी चाहिए हमें। Living up to that expectation, जैसे मतलब जॉब तो मिल गई है but to like live up to that. एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, तो एक ही हो गया। दूसरा, सपोज किसी की वेडिंग है, ठीक है ना, वेडिंग फिक्स हो गई, एक्सपेक्टेड थी, तो खुश है, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेस आता है कि नहीं आता है? Yes. आता है, आता है मैम, आता है। आता है, बहुत आता है। कैन अंडरस्टैंड कोमल, आता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेस है, लेकिन वो स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस है? आपको मजा आता है उस स्ट्रेस को लेने में, आप एंजॉय करते हो, आप उसको बेटर करने के लिए और उसके लिए खुशी से, आपको टेंशन नहीं, कि अरे यार अभी हॉल बुकिंग करना है, अभी खाने वाले से मिलना है, लेकिन उस काम को करने में कैसे हैं आप? स्ट्रेस भी ले रहे हैं आप, लेकिन उत्साहित हैं, आपको मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया गुड स्ट्रेस। क्यों ऐसा गुड होता है? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। एक और क्या ला सकता है बताओ आपके लिए? मैं ही क्यों बताऊं, आप बताओ। One, it brings opportunities, right? और क्या हो सकता है? You might also want to learn something new to live up, like to do something. Very good. Who is that? Roshni. हाँ, रोशनी। और कोई? Anybody else? Ma'am, can you come back with the question, please? My question was that expected and unexpected, even it is stress, it brings a certain thing which keeps us motivated, right? So what is that? Like for which we feel good. We feel good having that stress. वो stress अपने साथ रहना हमें मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे opportunities लेके आ गया, जॉब मिल गई ना। So it basically brings you to do new things. So I think that brings good things. Okay, good. Maybe the stress of responsibility. जैसे job stress है, but the happiness ये है कि our family is leading a better life. They have a better, good standard of life because we are earning because of the job. Correct, good. So we have क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, या कुछ नई चीज हमें सीखने के लिए देता है। ठीक है, टाइम एक्चुअली आई वुड हैव लव्ड दिस, जैसे मैंने कहा आपसे 8 घंटे का सेशन होता है, बट टाइम शायद हमारे पास कम होगा, तो आई विल जस्ट मूव लिटिल फास्टर सो दैट वी कैन कवर अप ऑल. I wanted to discuss everything, but let me go ahead. ठीक है, so it has fight क्या? यहाँ पे कैसा fight? कौन सी fight? There are two things when there something comes to you, fight or flight. So good stress allows you to fight. It motivates you to fight. It empowers you to fight. उनको फेस करने के लिए एनर्जी देता है. It makes you flexible. आप उसकी वजह से क्या करते हैं? आपके रूटीन को भी आप चेंज करना पसंद करते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. Then snowfall effect. Can anybody tell me what is snowfall effect? Maybe like when the snow falls, बहुत अच्छी लगती है, but जब गिरने के बाद में उसको साफ भी करना पड़ता है. Like the roads get blocked. Okay, that is one perspective. One, ठीक है, एक perception है. That's good. हर एक का अपना अपना होता है. तो that is also one good way to see that. Now, snowfall effect में क्या है कि तो have you ever seen snow falling? Pictures में देखा होगा, बॉम्बे में तो नहीं देखा होगा, but in movies you must have seen snowfall, right? Yes. All are from Bombay. Anybody out of Bombay, out of Maharashtra? Okay, ठीक है. स्नोफॉल जो है धीरे धीरे स्नो आती है, लेकिन एकदम हल्का, वो रुई का जैसा फहा होता है, स्मॉल सा. देखा है आपने? जैसे पोहा होता है ना, पोहे का एक छोटा सा ऐसा, तो वो जब गिरता है तो बहुत छोटा 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 होता है, लेकिन जब वो जमा होता है तो पूरी सामने दिखने वाली सारी जमीन को घेर लेता है. होता है.
तो इसी तरह से जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस हमें क्या करता है कि मोटिवेट करता है छोटे छोटे काम को करने के लिए। अभी चलो ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, लेकिन जब हम उन छोटे छोटे स्टेप्स को देखते हैं लिए हुए, तो वो छोटे छोटे स्टेप हमारे लिए बहुत बड़ी चीज लेकर के आते हैं। वो हमारी पावर्स में ऐड करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को ऐड करते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे आपका एक ड्रीम है, उस ड्रीम के लिए अगर आपने डेली एक एक छोटा छोटा काम किया, आज एक स्टेप लिया, कल एक स्टेप लिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दैट ओ माय गॉड, इतना मैंने कर लिया। होता है कि नहीं होता है? दिस इज कॉल्ड स्नोफॉल इफेक्ट। Then growth, it allows you to grow, it adds strength and it brings hope. ठीक? And you are happy with the having this kind of stress. अब क्या होता है कि जो दूसरा स्ट्रेस है, कौन सा वाला, जो अनएक्सपेक्टेड है या एक्सपेक्टेड है लेकिन अनवांटेड है, उससे क्या होता है? What happens? You tend to avoid things at certain point, like mental blockage kind of, you can say. हाँ ठीक है, करेक्ट। क्यों लेकिन? Why? Because maybe because आपका perception, like you are just seeing one thing, you're not letting yourself see better things, probably because of that. You're stuck at one place, maybe because of that. Okay, good. Anybody Also else? because it is unexpected and unwanted. And- Like we don't want that type of change in our life. तो यहाँ पे क्या होगा? गुड। तो इससे क्या होता है, जब एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड लेकिन अनवांटेड है, तो क्या चीजें लेके आता है हमारे साथ? वो हमारे लिए लेकर के आता है, क्या क्या लेके आता है? चैलेंजेस लेके आता है, राइट? लाता है नहीं लाता है? हाँ, Yes. एंड इट ब्रिंग्स फियर्स Yes. एंड अनसर्टेनिटी। लाता है अनसर्टेनिटी? yes, कि अभी जैसे कोरोना है, अभी जैसे काकोली ने कहा कि वी आर अनसर्टेन हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू बी देयर, है ना? एंड अलोंग विद दैट इट ब्रिंग्स इनसिक्योरिटी। आप इनसिक्योर हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? कि अभी क्या है, बहुत सारे लोगों को ये डर है कि कहीं उनका जॉब तो नहीं चला जाएगा। हो रहा है? बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना रहने का घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, इनसिक्योरिटी है। लोगों को अपने, किसी का प्लान था कि मुझे अगस्त में कहीं फॉरेन जाना है, तो अभी उसको इनसिक्योर है कि वो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, वो अनसर्टेन है। तो ये सारी चीजें, चैलेंजेस, फियर, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, दे ऑल बिल्ड अप सो मच स्ट्रेस, करेक्ट? बट स्टिल वी से दैट even the change brings challenges, fear, uncertainty and insecurity. तो which kind of, see, challenges कौन कौन से हैं? Unexpected challenges हैं, let me describe. Something is lacking to face that challenges, ये आपके पास challenge है. Then loss, other challenge क्या है? Physical loss हो सकता है, material loss हो सकता है, financial, emotional and time loss. टाइम तो बहुत ज्यादा हम लोग का लॉस हुआ है, कई लोगों ने फाइनेंशियल लॉस बेयर किया है, इमोशनल लॉस शायद हम सबको ही गुजर रहे हैं उससे, करेक्ट? मटेरियल लॉस, अगर से आप बिजनेसमैन का देखेंगे तो 2-2 महीने से जिनका सामान पड़ा हुआ था दुकानों में, यहाँ पे तो दिल्ली में बहुत बुरा हुआ है, दीमक खा गई है, पानी भर गया है, सड़ गया है सामान लोगों का जो पेरिसेबल था। एंड फिजिकल लॉस, जो डेथ तो इतनी सारी हुई है, तो ये चैलेंज है। देन डिमांड्स चेंज हैबिट्स, और जो ये चीज है हमें क्या चाहिए, आप हैबिट सारी चेंज करनी। अभी तक हम लोग कैसे थे, क्लास में जाकर के आई यूज्ड टू गो to visit the venues, places, to conduct the training sessions. Now this is a new thing I have to learn, कि नहीं अभी तो ऑनलाइन आना पड़ेगा भाई, जूम पे काम करना पड़ेगा, गूगल मीट पे काम करना पड़ेगा। तो इट डिमांड्स मी टू चेंज माय हैबिट्स। डेली वॉक के लिए जाते थे, अभी वो नहीं जा सकते हैं, है कि नहीं है? गेटिंग? Yes, ma'am. Yes. बाकी लोग भी सब हैं, ऑल आर देयर? Yes. बीच बीच में बोलते रहो अलग अलग, ओनली आई कैन हियर खाली रोशनी और कोमल बीच में आंसर कर रहे हैं, एंड हाँ थोड़ा थोड़ा आंसर करते रहेंगे सब तो अच्छा रहेगा। देन यू हैव लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। चैलेंजेस में आता है आपका कंफ्यूजन आता है। कैसा कंफ्यूजन है? जैसे इनिशियली किसी को पता ही नहीं था कि अरे एग्जैक्टली जो ये कोरोना का है उसके सिम्टम्स क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। Yes. और इस कंफ्यूजन में था कि जो अगर से लॉकडाउन हुआ है तो उस लॉकडाउन में क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, पता चला बाहर निकला पुलिस वाले ने पकड़ के अंदर बंद कर दिया, है ना? वो कंफ्यूजन था। क्यों था? क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, हमें पता ही नहीं चल रहा था। हम व्हाट्सएप पे भरोसा कर रहे हैं, हम फेसबुक पे भरोसा कर रहे
हैं, लेकिन वहां की न्यूज कितनी सही है वो हमें नहीं पता है, राइट? तो बहुत सारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है. देन इट डिमांड्स कमिटमेंट कि अभी चेंज कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ बेहतर करना होगा पहले से इन ऑर्डर टू सर्वाइव. दिस ऑल चैलेंजेस रिजल्ट इन फियर. ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. फियर आता है, और फियर किस चीज का आता है? अननोन फियर है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक नहीं पता चल रहा है. देन फियर ऑफ फेलियर है कि हम कुछ नया करें फिर उसमें फेल हो जाए तो सक्सेस नहीं होगा, तो अभी जो बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था नए तरीके से किया नहीं चला तो, राइट? स्टडीज किया, अभी स्कूल के लेसन्स मिस आउट हो गए हैं, लोगों ने कुछ बोर्ड के बच्चों के एग्जाम्स पेपर्स छूट गए हैं, वो नहीं हुए तो उनका रिजल्ट खराब हुआ, तो ये सब चीजें हैं दिमाग में. देन फर्दर लॉस ऑफ समथिंग और समवन यू आर अटैच्ड टू. अभी वो लॉस जो है वो डर बना हुआ है अमिड कोविड-19. अगर से हम इसी की बात करें, पर्टिकुलरली करंट टाइम्स की बात करें, तो जो लॉस ऑलरेडी हो चुका है वो है. अभी आगे और कितना लॉस होने वाला है, चीजों का, टाइम का, जॉब का या लोगों का, तो वो सब फियर है. देन इनएबिलिटी टू अडेप्ट. अगर हम इसमें अडेप्ट नहीं कर पाए तो, अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा है, इवन 10th तक भी पढ़ा है, तो आप लोगों ने लैमार्किज्म और डार्विनिज्म पढ़ा होगा. कितना ने पढ़ा है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. एग्जैक्टली. तो अगर आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पढ़ा है, राइट? और जो वो कहता है कि जो नेचर है वो अपने आप में खुद ही वो सेलेक्ट करता है जो बेस्ट सूटेड होते हैं. तो बेस्ट सूटेड अगर आपको बनना है तो आपको अकॉर्डिंग टू चेंज यू विल हैव टू अडेप्ट. आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? एम्पावर करना पड़ेगा और ज्यादा कैपेबल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव. Someone, we don't know that how long it will take for the business to be normalized or the schools to open again normally. So the teachers, those who are unable to adapt themselves to this technology, they are going to suffer. The people who are afraid of online business, they are going to suffer. तो अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे अपने आप को तो क्या होगा? हम सफर करने वाले हैं. ऐसे ही वर्क में जिन लोगों को ऑफिस में जाकर के काम करने की आदत है, अगर वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाते, वैसे तो लोग खुश रहते हैं बहुत वर्क फ्रॉम होम करने में. हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम? We are. बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना. तो उसमें उसके बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी हैं. खैर, देन कंपल्सन ऑफ लर्निंग न्यू और चेंजिंग ओल्ड. ये एक फियर है कि कंपल्शन है, नया सीखना है. जैसे मेरे लिए ही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मुझे जूम पे आकर के मीटिंग ऐसे सेशंस कंडक्ट करना है, क्योंकि इसमें वो फील आपको नहीं आता है जो आपको ग्राउंड पे आता है, सामने इंटरेक्ट करने में आता है, राइट? लेकिन आई हैव टू लर्न दिस इफ आई वांट टू empower myself, as well as if I want that my services should be taken by others or it should help others. तो मुझे करना ही पड़ेगा, old habits को change करना पड़ेगा. Then even the papers, people are writing exams online now, right? We are having sessions online, receiving and giving both. And along with the challenges and fear, और जहाँ पे challenge और fear होंगे वहाँ पे uncertainty और insecurity तो होगी ही होगी. अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इन सब के होते हुए भी अगर हमें कोई चीज परेशान करे, चैलेंजेस दे, इनसिक्योरिटी दे, अनसर्टेनिटी दे, फिर भी हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. क्यों क्यों करना चाहिए भाई? That's how we will learn in the long time. That is the reality. Yeah, we will learn We have how to to face cope it. up with them. Exactly, we cannot run out, है ना? रन अवे नहीं कर सकते हैं. और ये सारी चीजें जब आएंगी, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, फियर, चैलेंजेस, तो हमें बर्न आउट होगा, डिस्ट्रेस होगा. देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस वी कॉल बर्न आउट. स्ट्रेस इज गुड, डिस्ट्रेस इज नॉट. ठीक है? तो इसलिए हमें चेंज को, अपने आप को अगर इस डिस्ट्रेस से, इस बर्न आउट से बचाना है तो हमें अपने आप को डिस्ट्रेस करना होगा. Let me share the screen. हुआ? Yeah, I think it's starting. Yeah, हो गया. Yeah, ma'am. The slide is coming. Slide is Okay, coming. ठीक है. तो आपको सबको पता है वो जो सीन था, you all can recall that Amir Khan says that nobody knows whether it was if अगर हम क्या कर पाते उसको, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता तो हम पता लगा पाते कि ये क्या था, सुसाइड नहीं मर्डर था, Murder. राइट? Yes. So how many of you agree कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था? I agree. I You agree. agree? Okay. I don't agree. Who is that who
who is not agreeing? It's me, Mohit. It's me, Ah, Mohit. Mohit. Good. So why don't you agree, Mohit? Because decision आखिर में वो student का ही था. So Okay. like no matter Okay. what came in, he did it. He did it. So you think that he is responsible for this condition, right? Now I'm thinking. I really can't Yeah, think. I agree with Mohit, somewhat. Okay. So Prachit agrees to Mohit, right? Or Yeah. who else? I agree with Mohit. Okay. Who? Shreya. Okay. Good. Who else? Who agrees to Komal? I agree to Komal. You agree to Komal. Okay. Good. So अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है. ठीक है, इसको पढ़ो. दिस इज द न्यूज फ्रॉम WHO. आप पढ़ पा रहे हैं इसको या मैं पढ़ूं राउट? नहीं visible नहीं है. Visible nahi. Okay. In India, the National Mental Health Survey 2015-16 reveals that nearly 15% of Indian adults need active intervention for one or more mental health issues, and 1 in 20 Indians suffer from depression. It is estimated that in 2012, India had over 258,000 suicides, with the age group of 15 to 49 years being most affected. The Indian government's commitment reflected in the national mental health programs, which encompasses life skills training and counseling in educational institutions, workplace, stress management, and suicide prevention services, among others. ये है एक. Could you hear? Yes, ma'am. Okay. Second, Yes, ma'am. from depression to suicide. एंड दिस इज बाय इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज आर्टिकल है. आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे. ऐसे न्यूज से भरा पड़ा है गूगल, पूरा आपका इंटरनेट. फ्रॉम डिप्रेशन टू सुसाइड, व्हाई मोर इंडियंस आर फॉलिंग इनटू ट्रैप. आर यू डिप्रेस्ड? While most people would shy away from admitting it, many others remain unaware of this condition. कि कुछ को पता है हम डिप्रेस्ड हैं, but they are not ready to accept it. But some don't know at all कि they are depressed. Okay. Now, often confused with sadness and pessimism. उनको लगता है बस जस्ट ऐसी दुखी है, मेरा मूड नहीं है. It is easy to mistake this mental disorder for just a low point in life. Shockingly, cases of undiagnosed and untreated depression are rampant in India. And unsurprisingly, India is home to around 57 million people, nearly 18% of the global estimate, suffering from depression as per World Health Organization. ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगी मैं, आप न्यूज इसमें पढ़ सकते हैं ज्यादा, और अगर इंटरेस्ट आपको क्रिएट हो इस चीज में तो, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग फैक्टर ध्यान में रखना है. तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि हियर आई अग्री विद मोहित, बिकॉज स्ट्रेस इज नेचुरल बट डिस्ट्रेस इज अ चॉइस. आर यू गेटिंग नाउ? Yes. आर यू गेटिंग दिस? कि स्ट्रेस नेचुरल था, उसको पता था कि उसका टाइम जाने वाला है, लिमिटेड है, उसको एक बार छूट दी गई, 2 बार छूट दी गई, लेकिन उसके बाद भी अगर वो चाहता तो क्या कर सकता था. उसको सपोज उसका चलो प्रोजेक्ट उसका एक्सेप्ट नहीं होता, चलो नहीं होता, वर्स्ट टू वर्स्ट, फिर क्या होता? क्या होता बताओ, फिर क्या होता? क्या लाइफ खत्म हो जाती, दुनिया खत्म हो जाती? No. नहीं ना. आपने एक बोला, उसका नाम सुना है? He is a blind guy, देख नहीं सकता है, फार्मर का उसका टर्नओवर है, अंधा है, देख नहीं सकता है, टेडेक्स पे भी उसका टॉक आया है. फिर अरुणिमा सिन्हा, हेलो हेलो, कोई कुछ कह रहे थे? आर यू हियर, एबल टू हियर? yes. Okay. एंड ऐसे ही अरुणिमा सिन्हा का आपने देखा, उसके पैर, you have heard of her? No, ma'am, never heard of her. Never heard? Yeah, never heard. Sai is
Rachit, Saganika, Pratik, I can see anybody of you. I've heard. Okay, good. Shreya, you heard. Mohit, you heard. जो डॉक्टर है उनके बारे में क्या, जो डॉक्टर अरुणा सिन्हा है? अरुणा नहीं, अरुणिमा सिन्हा। उनके पैर कट चुका है और उन्होंने माउंट एवरेस्ट, हाँ, नॉट ओनली माउंट एवरेस्ट, जो पूरे वर्ल्ड की 7 पीक्स है, दैट ऑल शी हैज क्लाइंब। ओके, तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, आप इनको पढ़िएगा। तो उनके सामने क्या था, वो घंटों वो रेलवे ट्रैक पे पड़ी रही, उनको कोई उठाने नहीं आया। बट वो अगर नॉर्मल होती, अगर वो तो क्या करती, वहीं पे मर जाती, राइट? सो इट वाज द सिचुएशन। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो जॉय मुखर्जी का तो कुछ टेंशन था ही नहीं, बेसिकली देखा जाए तो इस मूवी में, 3 इडियट में, राइट? सो द मेन पॉइंट पे हम आते हैं कि स्ट्रेस जो है वो नेचुरल है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि उस स्ट्रेस को हमने यूज स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है या उसको हमने डिस्ट्रेस में कन्वर्ट करना है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ सी, बट द गुड न्यूज इज, अब ये है कि गुड न्यूज क्या है कि इसको चूज करने की पावर किसके पास है, वो हमारे हाथ में है। तो यूज स्ट्रेस बनाए या यूज स्ट्रेस को हम डिस्ट्रेस में कन्वर्ट करें और हम खत्म हो जाए। नाउ यू आर, आप अच्छे खासे हो, हंसते खेलते हो, सब बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में, मस्त हो बिल्कुल, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, नौकरी है, नौकरी नहीं है तो चलो पेरेंट्स से अच्छा सब कुछ अवेलेबल है, एंड वन डे समथिंग हैपेंस और एक चेंज होता है और वो आपको क्या हो जाता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब इस स्ट्रेस में, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। अब आप टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, आपके पास 2 चेंज टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस टू, सॉरी, यूज स्ट्रेस टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस टू यूज स्ट्रेस, दोनों में चेंज एप्लीकेबल है। बिना चेंज के स्ट्रेस नहीं होगा और बिना चेंज के स्ट्रेस से आप नो स्ट्रेस में नहीं जाओगे, तो दोनों जगह चेंज एप्लीकेबल है। एक चेंज मैंने रेड से लिया है, एक चेंज ग्रीन से लिया है। द फर्स्ट दैट यू अलाउ दैट चेंज एंड यू टर्न टू स्ट्रेस। अब स्ट्रेस में जब आप आ जाते हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप या तो रिवर्स जाओ, यू अगेन change and come to no stress, or you have the choice that you move ahead and don't take care of that and you come to distress. In distress you have a choice, you go back, manage your stress, ठीक है, कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। Manage your to little stress and then to no stress, or you have the choice to quit, जैसा कि जॉय ने किया, उसकी वॉल पे लिखा गया, मिला क्या, आई क्विट। ठीक, समझ में आ रहा है? यस। चलो अब करते हैं कैसे। हमने कहा तो सही कि हमारी चाहत में है, दिस पावर लाइज इन आवर हैंड्स, बट हाउ, कैसे ये पावर हमारे हाथ में है, इसको देखते हैं। कैन यू रीड इट? Yes, yes. हाँ, तो पढ़ो। यस मैम, यू कैन। सॉरी, नैना, मेरे ख्याल से आधा थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा, तो हाँ रीड करो, चलो जहाँ पे नहीं आएगा मैं बता दूंगी। Someone, one, is that all? कोई भी 1% पढ़ो। Yeah, is anybody initiating to read? I'll do it. Anna is a 28 years old girl who was working as a store before her services were terminated on 20th March 2020. As an ailing mother who needs regular monthly checkups and treatment, and a younger brother who is the final year of his graduation, Neha is the only breadwinner of the family. She's in love with Vihan and they had plans of marriage in November. Vihan had a flourishing business but suffered huge losses due to damage of goods during lockdown, and he is now worried about the repayment of loan that he had taken for the business. Naina has communicated about her job loss to trying hard to connect with him, but he is not listening to message. Okay, now the question. Can you think what is going on in Naina's mind, or Naina's or Vihan's life? क्या चल रहा है and what is bothering them now? ये तो evident है क्या चल रहा है, ठीक है? Yes.
Now what she or he must be thinking about him or her, यानी नैना, अब नैना मैसेज कर रही है लेकिन विहान रिप्लाई नहीं कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे विहान नैना के बारे में क्या सोच रहा है और नैना विहान के बारे में क्या सोच रही है, क्या चल रहा है? So maybe both are thinking their partner is not able to understand their situation. And are they expecting something? Yeah. कुछ expectation होगी? They might be expecting their partner will understand their situation. And they will help each other out, right? Help each other out, yes. लेकिन यहाँ पे विहान क्यों नैना को कनेक्ट नहीं कर रहा है, क्यों रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, why? Maybe वो सोच क्या रहा चल है रहा है कि दिमाग like और में? एक Because बोलो. Because of his financial Okay. stress. ठीक है. What can be the other reason? कुछ और रीजन हो सकता है? Maybe he has no money left to get married, like for the marriage rituals and all. Okay. So can we say that he must be thinking that Naina will pressurize him to get married soon or something like that? इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर रहा है उसको, या उसको लग रहा है कि she will ask for financial help, something like that? दोनों चीजें हो सकती है. yes, chances are there. Chances are there, right? Yes. Okay. Now, would she or he be stressed? Why? Would she or he be stressed? दोनों होगा कि नहीं होगा? Yes, both. होगा. Obvious है, normal है, हमारी तरह से नॉर्मल पर्सन है तो ऑब्वियसली स्ट्रेस होगा. अब प्रॉब्लम्स क्या है उनकी? नैना की प्रॉब्लम क्या है और इसकी प्रॉब्लम क्या है विहान की? थिंक, क्योंकि हम भी कभी न कभी इस सिचुएशन में आते हैं. Anyone? So Naina's problem could be that she has many people, like she has good number of responsibilities of people who are looking up to her, like her mom. She has a younger final year, he might want to study further, they might need finances for that. Also she's looking at her marriage, so maybe something of that sort. Correct. And what about विहान? Somebody else, कोई और pick up करो thread. मोनिका कुछ नहीं बोल रही है. सुकन्या, श्रेया, सचिन, शिशिर, are you all there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. She has number of responsibilities on her. Okay. Vihan's problems. He must be thinking about his financial. He also must be thinking about his financial loss plus. And with his marriage and all, so I think both could be the reason. Okay. Now, what do you expect her and him to do? फिर नैना को क्या करना चाहिए कि how she should handle that Vihan is not responding to her? So what in your idea, what you think, what she should do, and what Vihan should do? आपके हिसाब से, अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते यहाँ पे? They should talk to they each should other. Communicate. From Naina's perspective, she should try, और अगर एक point के बाद response नहीं आए तो she should focus on कि family का finance वापस ऊपर कैसे लाए, rather than taking stress about it. Okay, good. What else? Who else? Any other thoughts? Kakoli, are you there still?
Yes, I am. Yeah. Can you suggest? If you were, just think, if you were in this situation, what would you do? Will not, let me complete. Where Vihan is not responding and she is continuously trying. So she should continue to connect to him, contact him, or you agree with the other answer we got just before that? Or you have some other perspective? Just explain, please. No, if she doesn't have any way of getting through to him, then she'll have to focus on the things that she has control over rather than focus on something that she has no control over. Okay, that good. That would be, I guess, the wise thing to do. Good enough. And what Vihan should do? If you were in place of Vihan, what would you have done? Communication is important, whatever it is, whether you want to, I mean, maybe you are not able to deal with the situation, your own situation, and the other person's situation. So the right thing, of course, would be to at least to communicate, to talk about it. But I guess, I mean, when one is under that kind of stress, times we don't always tend to end up doing the right thing. I mean, I'm just trying to look at it from his point of view. Yeah, correct. You have, that's correct. I think Punika wanted to say something. Ma'am, I think Vihan would not like to talk because it's kind of a depressing situation for him. Okay. So if I were at his place, so I would do the same thing, lose all contact and isolate myself. I think it's kind of right. Okay, right. Okay. So let us move ahead. There are, I think, anybody else want to say something? Want to give their views? Otherwise, we'll move ahead. Okay. Hello? Yeah, Roshni. What should they be doing ideally? I mean, we've heard so many answers, but what is like the correct approach? We are reaching, just moving ahead. Okay. That is the actual process, what we should do in such situation. I told you that I'm going to give you some solid process where you can identify, or you can chalk out the way, a plan, what you should do, what is right, what is wrong. Okay. Here we saw that there are various viewpoints. One is like Naina should try again to communicate or make contact. Okay. Another way is, if he is not responding, she should not chase him and leave him at his own, and she should start focusing on what she has to do for the paying the finances and her own things. And the same way for Vihan also, we have ideas like either he should, some say that he should communicate or he should not lose contact with Naina. After all, they have been in love, right? So, and other thing is like he has his own stresses and he should focus on what he has to do for his own business and future. So, now we come to this, the first process I am going to give you. That one mantra here was like, यहाँ पे क्या है कि okay, let us move, उसके बाद मैं देती हूँ आपको, मैं 3 मंत्र देने वाली थी ना. Here is the best thing is the self compassion. ठीक है, self compassion क्या होता है? Normally we look at others whenever we are in stress, we are dealing with pressing problems, then we look for compassion from other people. हम लोगों में सपोर्ट चाहते हैं कि हमारे पास कोई आए, कोई हमारी सुने, कोई हमें पूछे तुझे क्या हुआ है, और हम बार बार उन्हीं चीजों को दोहराना चाहते हैं, राइट? तो we put ourselves into a pitiable condition. और कुछ लोग होंगे जो हमें genuinely सपोर्ट करेंगे, कुछ होंगे जो बोलेंगे क्या यार बार रोता रहता है या रोती रहती है. तो they will try to cut off contacts from that. Hey, are you listening? Yes. होता है ऐसा. So here we have a Chinese जो ये है एक theory है, that is we call it yin yang theory. ठीक है, yin yang का principle होता है yin, Y-I-N yin and Y-A-N-G yang.
तो दिस इज द सेल्फ कंपैशन। उसमें बहुत सारी हीलिंग है, मेंटल हेल्थ हीलिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो है हम यिन यांग का कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं। ये जो आप व्हाइट वाले से देख रहे हैं, this is, there are two concepts in self compassion. One is feminine side and other is the masculine side. The feminine side is considered to be the being with ourselves, a little bit weaker side, and the yang side is little bit stronger side, which strengthens you. ठीक है, जो आपको एम्पावर करता है। तो यहाँ पे जो हम इस एक्सरसाइज में हम फोकस करेंगे कि हम किस तरह से ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ही हमारा होल सेल्फ बनता है। और हर चीज जो वर्ल्ड में, चाहे वो कुछ भी चीज हो, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट्स। ये यिन यांग थ्योरी है। Like we have boy, girl, day, night, we have water and fire, we have female and male, ठीक है ना, we have frown and smile। तो हर चीज का एक, जो कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, वो चाहे लिविंग बींग्स में हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट में हो, तो वो हमेशा दो में होती है, और जब दोनों मिल करके ही एक चीज को फॉर्म करती है। तो इसी तरह से सेल्फ कंपैशन है, उसके भी दो कॉन्सेप्ट हैं, बीइंग विद अवरसेल्फ एंड एक्टिंग विद द वर्ल्ड। कि ये आप एक हो, आप अपने साथ अपने लिए क्या करते हो, और दूसरा आप बाहर वर्ल्ड में क्या करते हो। ठीक है, तो ये जो यिन साइड है, दैट कम्स फॉर कंफर्टिंग, अपने आप के लिए, हमारे लिए। इसके तीन कॉन्सेप्ट हैं। क्या है आपके? सेल्फ काइंडनेस, एक मिनट, लाइट भी चला। सेल्फ काइंडनेस है जिसमें आपका कंफर्टिंग, सूदिंग, वैलिडेटिंग और नर्चरिंग। ठीक है, ये तीन चीजें आती हैं। आप अपने आप को आप कंफर्ट कर सकते हो, सूदिंग कर सकते हो, वैलिडेशन कर सकते हो अपने थॉट्स को। लेकिन ये सब जो हम कर रहे हैं, बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, जो हमें हर्ट कर रहा है, जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम उस साइड में एक्शन नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। ये एक्शन कहाँ हो रहे हैं? अपने अंदर हो रहे हैं। ठीक है, कोई मुझे अगर मेंटली हैरेस कर रहा है तो मैं उसको कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन क्या कर रही हूँ मैं? अपने आप को ईज आउट टेंशन। क्या कर सकते हैं ऐसे केस में? आप क्या करते हैं जब आप स्ट्रेस होते हैं? कैन यू टेल मी समथिंग व्हाट यू डू व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड? Eat. I usually eat. Social distancing, like we distance ourselves from the world. Isolated, right? So self isolate हो जाते हैं, correct. और क्या people hear sad songs, like doing yoga. योगा कर लेते हैं, ठीक है। Go to sleep, yes. और you listen to music, है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप थोड़ा बिजी रहते हैं, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेडिटेशन कर लेते हैं, प्रीचिंग है, सत्संग ज्वाइन कर लेते हैं, तरह की चीज है। तो ये सब हमारी बीइंग विद अवरसेल्फ, यानी जो हम अपने आप में चेंजेस करते हैं, अपने आप को। यानी आप बहुत टायर्ड हैं, बहुत थके हुए हैं, आप बाहर कुछ नहीं कर रहे, घर पे आके आपने एक हॉट वाटर बाथ ले लिया, आपने म्यूजिक सुन लिया, आपने अपनी पसंद का कोई गेम खेल लिया, पसंद की कोई बुक रीड कर ली। ये सब कहाँ आ जाता है? बीइंग विद अवरसेल्फ। दूसरा पार्ट जो आपको एम्पावर करता है, जो मेन पार्ट है आज का हमारे से फोकस है, आपको एम्पावर, स्ट्रेंथनिंग करने में। हियर वी टेक एक्शन इन दीज 3 डोमेन्स, व्हिच इज प्रोटेक्टिंग, प्रोवाइडिंग और गिविंग एंड मोटिवेटिंग टू सेल्फ। Remember that these all things, 6 things you are doing to yourself. ठीक है, one is yin, one is yang. तो somebody may choose to do yin thing, some people may choose to do yang thing, right? तो protecting में क्या है कि what you can do to stop someone from hurting you or save yourself from the hurt which you are inflicting on yourself. कई बार क्या होता है, कुछ दूसरे हमें हर्ट कर रहे होते हैं और कई बार हम खुद को हर्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को बेचारा समझ के, अपने आप को दीनहीन समझ के, विक्टिम समझ करके, बार बार पास्ट चीजों में रिवर्ट जा करके। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उन चीजों से हमें प्रोटेक्ट करना, यानी एक्शन लेना, दैट कम्स इन प्रोटेक्टिंग। देन प्रोवाइडिंग एंड गिविंग, यानी व्हाट इज दैट थिंग, वन थिंग दैट यू कैन डू टू गिव योरसेल्फ। यानी सपोज I am going to get a very good job, but that demands a particular type of skills to me, or I am promoted to something, I am already in a job और मुझे मेरा प्रमोशन हो गया, लेकिन वहां जाने के लिए मुझे एक नई स्किल की जरूरत है। तो अब मुझे स्ट्रेस है, तो एक चीज तो या तो मैं रिफ्यूज कर दूं कि आई डोंट वांट दिस प्रमोशन, बाबा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो नहीं चाहिए, तो आई एम रनिंग अवे। सेकंड इज आई एम प्रोवाइडिंग माई सेल्फ, आई एम गिविंग माई सेल्फ दैट बट आई विल लर्न दैट स्किल। वाह, ठीक है, भी अनएक्सपेक्टेड था, मुझे प्रमोशन मिल गया, लेकिन उसके साथ एक टेंशन आ गया है, एक नई स्किल मुझे चाहिए, सो आई एम टेकिंग एक्शन। एक तरफ मैं यिन एफर्ट लेती रहूंगी अपने आप को काम करने के लिए, ये नहीं है कि मैं यिन छोड़ दूंगी। आई विल डू सम मेडिटेशन, आई विल लिसन टू म्यूजिक, आई विल लर्न समथिंग, ताकि वो मेरी इनर पीस बनी रहे।
लेकिन मैं एम्पावर तो नहीं हो रही हूँ ना. आई एम नॉट किलिंग द प्रॉब्लम. हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को किल करना है, राइट? तो we provide, I update myself, upgrade myself with that new skill, and I enjoy. I come more stronger. जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं स्कूल में तो मुझे कंप्यूटर वगैरह नहीं आता था ज्यादा, बहुत ज्यादा. मैं 1988 I did MSc, और उस टाइम पे तो कंप्यूटर वगैरह इतना था ही नहीं. So even for the typing questions we were dependent on other people. But slowly when I thought कि नहीं, लोग इतना readily help के लिए नहीं आते हैं, and I have to keep for hours waiting for them to assist me, I started doing my own question paper, learning, making PowerPoint presentations and all. और अभी आप देख रहे हैं कि I do all this. I make all my videos by myself. I create all my PPTs by myself. So I am not dependent. I have given this to me. And then motivating. How you can motivate? What you can do to motivate yourself? आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? ये 3 चीजें हैं, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे इस वक्त? अपने लिए आपके हाथ में पेन और पेपर है. मैंने कहा था अब आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने एक अलग अलग जगहों पे रखा था, घेरे में रखा था. तो उन प्रॉब्लम्स को आप फटाफट से, अभी कोई टेक एनी वन प्रॉब्लम नाउ एंड यू कैन डू फॉर अदर्स. इन योर पेपर मेक 2 कॉलम्स, इनफैक्ट 4 कॉलम्स. अगर पेपर को हॉरिजॉन्टली ले लीजिए और 4 कॉलम्स बनाइए. फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे फर्स्ट हाफ में, जिसमें 2 कॉलम होंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे यिन और सेकंड साइड में डालेंगे yang. ओके, टॉप में. फिर यिन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और yang को भी, तो आपके पास 4 हो जाएंगे. ठीक है, डन. हो गया? हो गया मैम. यस मैम, डन. डन, ठीक है. तो जो यिन साइड है आपकी, उसमें आप फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? ऊपर ये जो है एस्पेक्ट कॉलम है. फर्स्ट कॉलम में लिखिए एस्पेक्ट और सेकंड कॉलम में लिखिए एक्शन. हो गया? एस्पेक्ट पार्ट में फर्स्ट में लिखिए राइट डाउन कंफर्टिंग. द फर्स्ट थिंग वाज व्हाट? कंफर्टिंग. ये एस्पेक्ट है, कंफर्टिंग का एस्पेक्ट है. इसके सामने जो आपका एक्शन वाला कॉलम है, in front of comforting, you have to write one thing related to that problem. Now our whole focus is on that problem, okay? Which makes you comfort yourself? Yes, what you are going to do to yourself for your emotional needs. Remember, for emotional needs. That is in the action column. Action column. ठीक है? Are you getting that? And in the expect column, write the comfort. Comfort, yes, comforting. In the aspect column, write comforting. And अगर चाहिए तो आप अपने आगे के भविष्य के लिए लिख सकते हैं, रेफरेंस के लिए, कि what you can do for yourself, for your emotional needs. ठीक है? What you can do to care about your emotional needs. तो वो फिर एक्शन आप क्या करेंगे वहां पे इस सिचुएशन में, that you write down. Okay, according to that situation. हाँ, okay. According to that. जैसे नैना का केस था, तो नैना के केस में वो कंफर्टिंग के लिए क्या कर सकती थी अपने आप को, व्हाट इमोशनल नीड्स को जो उसके सेटिस्फाई करे. फॉर एग्जांपल, शी कुड हैव स्पोकन टू हर बेस्ट फ्रेंड. उससे सजेशन ले सकती है. Yes. करेक्ट. शी कुड हैव, इफ शी हैज एनी मेंटर, शी कुड स्पोक टू द मेंटर सो दैट हर इमोशनल जो अंदर ही अंदर जो बिल्डअप हो रहा है उसको वो बाहर निकाल सके. So in such case, what you can do. Getting the point? Yes, ma'am. Yes. Now come to the second. हो गया? अगर नहीं हुआ है तो just you can note down what you are supposed to do, what action you will take, and then second come to soothing. Comforting के नीचे आइए soothing में, ठीक है? Aspect column में. और वहां पे लिखिए one thing you can do to make yourself physically comfortable, physically calm. जैसे कि योगा करना, वॉक के लिए जाना, एक्सरसाइज करना, ठीक है ना, म्यूजिक सुनना, डांस करना, जो आपको फिजिकली काम करे. अपनी फेवरेट कोई गेम है वो खेलना. That will be coming in the action column, right? Action column. That will come in action column. Yes. So for one aspect you have to write one action. You can write more also, but write one. ठीक है? कंफर्टिंग के लिए एक एक्शन, सूदिंग के लिए एक एक्शन, फिर वैलिडेटिंग एंड नर्चरिंग के लिए एक एक्शन. वैलिडेटिंग और नर्चरिंग इज सेम थिंग हियर. व्हाट इज वन थिंग दैट यू कैन से टू वैलिडेट योर फीलिंग्स? अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करने के लिए आप क्या कह सकते हो, आपको कैसा फील हो रहा है,
I'm going through stress. I said, okay, it's okay. Stress is, हाँ, कोमल कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं मैम. Okay. Are you sure? Yeah मैम, yeah, very sure. So यहाँ पे मैं अपने आप से क्या, सपोज कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे मुझे हेल्प नहीं मिल रही थी, तो मैं क्या कह सकती हूँ अपने को, ठीक है, इट्स ओके. If no one helps me, I will do something for myself. I am capable. I can do it. I can handle it. This is what I am doing. I am validating my feelings. Okay, I am feeling bad, but maybe he has his own problem. At the same time, I am thinking about him also. उसका भी मैं सोच रही हूँ कि हाँ, हो सकता है उसके पास काम ज्यादा हो, या हो सकता है कि उसके कुछ और अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकता है वो टाइम नहीं डिवोट कर पा रहा हो, तो वो मैं अपने आप को वैलिडेट करूंगी कि हाँ ठीक है, बट आई शुड ऑल्सो नॉट डिपेंड अपॉन हिम ऑल द टाइम. आई शुड डू समथिंग. है कि नहीं है? सो दिस इज फॉर वैलिडेटिंग एंड नर्चरिंग माई ओन फीलिंग्स. हो गया एस्पेक्ट कॉलम आपका, यिन पार्ट हो गया. Yes, the two things, right? That's over. Done first part है, done two things, aspect and action हो गया yin side का. Yes. Okay, all. Konika, done. Painona has done. Konika, are you there? I think she is not there. Kakuli, you are there? Yeah, done. Okay. Sukanya, you are there? Sangya? Yeah. Okay. Saish? Prachit? Are you there or गायब हो सब? श्रेया, मोहित, शिशिर, सचिन? परिन, उज्ज्वला, कोमल? कोमल Yes, तो है, ma'am. हाँ, कोमल is there. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Praveen is there, Ujjwala is there, yeah. Okay. Okay, Sachin, you are there? Sachin is from our comms team, so Okay, okay, I okay, think- fine, fine. Shishir, he is also from your team? No, so Okay, not. Ujjwala, Sukanya, Sangya, and And, okay, 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 ठीक है. Stay, चलो. That's fine. Now come to the action, yang part. In the second half, write down in the yang part, again write aspect and action. The first aspect was protecting. In protecting, what I can do to stop others to hurt me or myself from hurting my feelings. ठीक है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? Say for example, I am overburdened with work. मेरे पास बहुत काम है और मुझे जो है कोई हेल्प नहीं मिल रही है, और मुझे अकेले सारे काम करना पड़ रहा है, लेट ओवर टाइम करना पड़ता है, और ऊपर से ओवर टाइम का पैसा भी नहीं मिलता है, तो क्या होगा? आई हैव रीजन, आई गो टू माई बॉस, आई डिसाइड दैट आई विल स्पीक टू माई बॉस, आइदर गिव मी a few days off so that I can rejuvenate, I rewind, refresh myself and again get back to work, or cut down my work, or appoint someone, delegate some of the work to somebody else. So ये हो गया protecting. I am protecting myself from further damage, right? Or I myself, I am asking, suppose I am doing and just to make people happy or make them feel obliged, I am taking on my own कि हाँ ठीक है मुझे दे दो मैं करूंगी, क्योंकि मुझे ना कहना नहीं आता, right? किसी ने कुछ काम मेरा कर दो तो मैंने कहा okay, okay, I will do that. I know that I am already overburdened and still I am taking it, so I will say no. I will learn to say no when it is enough. Okay, so this is the protecting thing. So regarding that same problem, जो आपकी problem है उसी problem पे focus करते हुए आपको लिखना है action part में in protecting कि आप क्या करोगे. Anybody having any question so far? कुछ पूछना है? Ma'am, can you give us an example, like one more example of how can this protect like come into use? Protecting वाला? Yeah, ma'am. In an expect column. In action column. Yeah, in action. I require an exam. expect. Aspect, not this is not expect, this is aspect. ASPECT. What is the aspect? Aspect is what is one thing you are
ठीक है ना? दिस इज एक्सपेक्ट, नॉट एक्सपेक्टेशन. Okay. If it is expectation, that comes in the action column only. What you expect from your boss to cut down this. Okay? ये aspect है protecting का. हाँ, so Komal, for you, right? Suppose you are good in bookkeeping, ठीक है? Accounting में, so accounts में आप बहुत अच्छे हो, and you have your best friend's younger brother is in just taken admission in BCom and he doesn't know how to do, or he is very poor, और आप कहते हो in accounting, और आपके पास रिक्वेस्ट लेके आते हैं कि प्लीज इसको अकाउंटिंग सिखाना है. आप कुछ दिन करते हो, बट यू सी दैट योर क्रिकेट इज सफरिंग, आप मॉम का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, आप अपना जो मी टाइम है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हो. सो व्हाट यू विल डू? एक तो तरीका है कि आप बर्नआउट होते रहो, आप अपने आप के अंदर गुस्सा होते रहे, इतना सारा काम है, इसको ना भी नहीं बोल सकता, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन करूं तो मुझे मॉम को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाता हूँ, या मुझे किसी और को भेजना पड़ेगा, या मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा. तो आप क्या करोगे ऐसे में? आप चलो आपने क्रिकेट सेक्रीफाइस कर दिया, आपने तो ठीक है क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो आपको क्या होगा? आप वो तो छोड़ दोगे, लेकिन उसके बदले में आपको क्या लगेगा? यू विल फील स्ट्रेस्ड. यार मेरा जो होगा कि नहीं होगा, तो आपको प्रेशराइज. अब एक को देखा, उसको देख करके दूसरा फ्रेंड भी आ गया कि अरे यार तू इसको तो पढ़ा ही रहा है ना, चल इसको भी पढ़ा दे. अब क्या होगा? So ma'am, in the expect column is the situation and the action column is what you'll do to it. Exactly. ठीक है? Got it. सिचुएशन तो आपके पास ऑलरेडी है, वो प्रॉब्लम में है ना, तो प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट हैं कि आप प्रोटेक्शन में क्या करेंगे. एस्पेक्ट इज प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन, दैट इज एस्पेक्ट, एंड एक्शन इज इन योर सेल्फ प्रोटेक्शन, व्हाट यू विल डू. अब तुम्हें अपने आप को बचाना है, जैसे फॉर इन द प्लेस ऑफ कोमल के एग्जांपल में, तो आप क्या करोगे? आप उसको रिक्वेस्ट करोगे कि देख अभी मैं 15 दिन तक तो मैं क्लास नहीं ले सकता भाई, या अगर मैं 1 घंटे के लिए ले रहा हूँ तो देख मैं आधा घंटा पढ़ाऊंगा और जो कराऊंगा वो होमवर्क मुझे करके आना पड़ेगा. ठीक है, ये आप बोल सकते हो. फिर आप बोल सकते हो ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन बदले में मैं मॉम का अपॉइंटमेंट है तो मॉम को लेकर के तुझे, अगर कल उसका पेपर है उसको हेल्प चाहिए तो आप दोनों देख लो, लेकिन मैं दोनों चीज नहीं कर सकता, तो तू क्या मॉम को लेकर के हॉस्पिटल जाएगा? ये आप एक्शन ले रहे हैं. आ रहा है समझ में? यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ. ऐसा नहीं हो कि आप पहले पढ़ाओगे, पढ़ाई खत्म करोगे, फिर आप मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाओगे, फिर आप अपना क्रिकेट का कोच को बोलोगे कि नहीं मैं नहीं खेल सकता हूँ. आ रहा है समझ में? Yes ma'am. हाँ, Vainona got it? Yes, yes. So what you can do, ठीक है? या फिर आप सीधे से जो दूसरा फ्रेंड आ रहा है उसको बोलते हैं एक ही को मैं बड़ी मुश्किल से करा रहा हूँ, अभी आगे नहीं हो पाएगा. ये होता है कि हमें नहीं बोलना नहीं आता है हम लोगों को, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि हम वो ना की वजह से रह जाते हैं और हम बर्डन लेते जाते हैं. बट नो हैज टू बी वेरी, उसके लिए भी एक अलग तरीका होता है, स्पेशल तरीका होता है आप लोगों को ना कैसे बोलना है, उसके लिए अलग से चलना पड़ेगा. So, ठीक है, वो एक सेपरेट वो कम्युनिकेशन में आ जाता है. राइट, नाउ वी कम टू प्रोवाइडिंग. फिर सेकेंड एस्पेक्ट में आइए प्रोवाइडिंग का. इसमें व्हाट इज वन थिंग दैट आई कैन प्रोवाइड माई सेल्फ टू मीट माई नीड्स. अब जरूरी नहीं है कि वहां पे आपकी नीड हो ही. सपोज कोई स्किल है, जैसे मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया था कि वो मेरी नीड थी, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया टू अपने आप को एक नई स्किल दी, और वो स्किल से क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ उस साल में ही फायदा नहीं हुआ जब मैं स्कूल में थी, स्कूल छोड़े मुझे सालों हो गए हैं, बट उसने मुझे इतना सारा इतना एम्पावर किया कि आज मैं इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर सकती हूँ अपना. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. सो व्हाट आई डिड, आई टुक ऑन द yang साइड, अपने आप को स्ट्रेंथन किया, एम्पावर किया. तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो ऐसा? थिंक एंड राइट. This was for the yang part. Yang part, yes. Okay. Second is providing, and the last one is motivating. Second is the providing for the yang. Yang, yes. Yin is over ना. Yin के 3 पार्ट थे आपके. You had comforting, soothing, and validating. And in yang part we are with. Actually I told you कि ये बहुत लंबा सेशन है, 8 घंटे का सेशन होता है पूरा कंप्लीट करने में. So within 2 hours it is a bit difficult. Ma'am, can you repeat the points for yang? Yang के लिए आपका protecting, providing and motivating. ठीक है, ये 3 पॉइंट है. Now in protecting में आपने लिख दिया, providing में आपने क्या नया आप अपने आप को दे सकते हो. You can learn a new skill every year or something. You can set both for yourself and then motivate. और एक चीज और हो सकती है, सपोज आप बहुत ज्यादा आपके पास काम है, आप घर का भी काम है, बाहर का भी है, तो what you can do, you can think of hiring a maid. कि चलो मैं एक हाउस हेल्प जो है वो ले लेती हूँ.
अभी तक तो मैं सब कुछ खुद कर रही थी, मैनेज कर रही थी, बट नाउ आई डिसाइड दैट आई विल टेक वन हाउस हेल्प, जो कि एटलीस्ट मेरा किचन का काम हो जाएगा, या मैं कुक हायर कर लूंगी जो खाना बना देगा, और समथिंग लाइक दैट, कि जिससे आपको एडिशनल हेल्प हो जाएगी. दिस यू आर प्रोवाइडिंग टू योरसेल्फ. गेटिंग? Then come to last motivating factor, that how I motivate myself with kindness. ठीक है, third part in Yang. How we, Vainona, you want to say something? No, ma'am. I was just writing down the points actually. Okay, ठीक है, ठीक है. यहाँ पर क्या हुआ कि अपने आप को आप कैसे काइंडनेस के साथ, विदाउट क्रिटिसिज्म, हाउ यू कैन मोटिवेट योरसेल्फ. In any situation, right? In any situation. So now if you have any challenging situation, उसमें अगर आप ये मेथड को अप्लाई करते हैं, yin और yang का, taking care of all the three sides of yang and three sides of the yang, you will see that your solutions are done. और उसके बाद भी आपको कोई help की जरूरत होती है तो at the end I will be sharing my number and my mail. You have all the contacts. मेरा Facebook, Instagram, YouTube सब जगह available हूँ, so you can seek help and I'll be more than happy to help you. Okay. Now, shall we move ahead? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay. तो आप आ जाइए इसमें. ऑलरेडी हम इसमें फिर से हमें करना पड़ेगा क्या, न्यू शेयर. कैन यू सी द स्क्रीन? Now you know that stress is a, क्यों जरूरी है? देखो, स्ट्रेस से डिस्ट्रेस होना, स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर. स्ट्रेस कब आपके अंदर घर कर लेता है, कब धीरे धीरे आपकी सेल्स को, एक्चुअली क्या होता है, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो उस वक्त कुछ हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं जो कि आपके इमरजेंसी में सरवाइव करने के लिए होते हैं, फाइट और फ्लाइट मोड के लिए होते हैं. लेकिन जब आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं ज्यादा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं टाइमली, तो उन हार्मोन्स का सीक्रेशन और ज्यादा बढ़ने लगता है, और जब वो जरूरत से ज्यादा होता है तो फायदेमंद होने के बजाय वो आपको नुकसान देने लगता है, आपकी ब्रेन सेल्स को वो श्रिंक करने लगता है और आप उसकी ग्रिप में आते जाते हैं, एंड स्लोली इट आपको वो अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है. इट किल्स यू. कहते हैं कि स्ट्रेस इज द साइलेंट किलर, वो पूरी तरह से खोखला कर देता है. रेंडर जैसे वायरस होता है ना, तो ये आप समझ लीजिए कि पहला मंत्र ये था आपका कि डीलिंग विद द चेंज में क्या है, किसी भी वेदर इट इज चेंज और स्ट्रेस, द बेस्ट वे टू डील विद देम इज टू फेस देम. ये याद रखना हमेशा, उनसे भाग के आप कभी नहीं जीत सकते. रिमेंबर दैट. फर्स्ट मंत्र क्या था? स्ट्रेस और चेंज और चैलेंज, एनीथिंग, the best way to positively deal with them is to face them. Okay. Then second is stress is the silent killer. Kill it before the stress kills you. क्या? Stress is the silent killer. Kill the stress before it kills you. यहाँ पे एक छोटा सा एकदम फ्रॉग सिंड्रोम के बारे में बताऊंगी. Have you got about the frog syndrome के बारे में सुना है? No, ma'am. No, ma'am. फ्रॉग सिंड्रोम क्या है कि एक पैराबल है, एक इमेजिनरी स्टोरी है कि एक फ्रॉग जो है उसको एक पैन लिया गया, गैस के ऊपर एक पैन रख दिया, उस पैन में ठंडा पानी रखा और उस पानी में एक फ्रॉग को छोड़ दिया और धीरे धीरे उस फ्लेम को इंक्रीज किया. तो फ्रॉग, आपको पता है कि फ्रॉग जो है बॉडी के टेम्परेचर को, बाहर की बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है. ये उसको बाय नेचुरली उसकी एबिलिटी है. तो वो टेम्परेचर को एडजस्ट करता है और उसके बाद थोड़ा फिर टेम्परेचर बढ़ाया, पानी थोड़ा और गर्म हुआ, उसने फिर अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया, फिर थोड़ा गर्म किया, फिर एडजस्ट किया, फिर थोड़ा और गर्म किया और फिर एडजस्ट किया. और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब फ्रॉग को लगता है कि ये अब इससे ज्यादा सहन नहीं होगा, मैं इससे ज्यादा अपने आप को नहीं बचा सकता हूँ, he tries to jump out. But by that time he has lost all his energy. जो उसकी एनर्जी थी वो सारी उसने किसमें खत्म कर दी? अपने आप को एडजस्ट करने. And by the time he decided to jump out, it was too late and the frog died.
in the water. यही ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है जब स्ट्रेस होता है. हम थोड़ा लेवल का स्ट्रेस है, वी एडजस्ट, अगेन प्रॉब्लम वी एडजस्ट, फिर प्रॉब्लम है वी एडजस्ट. किसी से बोलते नहीं है, किसी को बताते नहीं है, अपने अंदर हम घुटते रहते हैं. और एक टाइम ऐसा आता है जब वो हमें पूरी तरह से पकड़ लेता है एंड देन स्ट्रेस बिकम्स क्रोनिकल. और क्रोनिक हो जाता है. जब क्रोनिक स्ट्रेस अगर हो जाएगा तो क्रोनिक स्ट्रेस फिर हम लोगों के बस की बात नहीं है. यू हैव टू टेक कंसल्टेशन विद द साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लिए बिना वो स्ट्रेस खत्म नहीं होगा. सो इट्स बेटर व्हेन वी नो हाउ टू डील विद इट, बेटर नॉट टू अलाउ योरसेल्फ टू रीच दैट फ्रॉग स्टेज. आ रहा है समझ में? दिस इज फ्रॉग सिंड्रोम. जैसे ही लगता है कि स्ट्रेस हो रहा है तो इमीडिएटली क्या करेंगे आप? उसके लिए स्टेप लेंगे कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ. Now is the time for change. About 10 minutes. इसको हम एक्सटेंशन की चॉइस नहीं है ना रोशनी? By how much time, ma'am? First ask all, कितना 10 minutes के लिए स्ट्रेच कर सकते हो? I think yeah, 5-10 minutes you can. Okay, ठीक है. Enough. Now the second promise I had done to you. मैंने आपको 2 प्रोसेस और 2 क्या देने बोला था? 3 मंत्र. 3 में से 2 आपको मिल गए, याद रखना. And the second process ये आपको कहीं गूगल में भी नहीं मिलेगी. Time for change, how to adapt to change. This I have created. ABC of change. Okay. And this ABC of change. And before I begin this, I'll suggest you to read book Who Moved My Cheese. अगर आपने नहीं पढ़ी है तो. It's a wonderful book on change management. ठीक है. और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप चाहें तो YouTube पे देख सकते हैं, जिसका जिस्ट अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप YouTube पे सुन सकते हैं. Who moved my cheese? ABC of change, and I have divided this ABC into 3 levels. First level ABC, second level ABC, and third level ABC. Let us come to level 1. Is it visible to all? Yeah. Okay. Yes, ma'am. The first one is accept change. As I told you कि जब चेंज की बारी आती है कि आप चेंज से मैनेज कैसे करना है, कि चेंज से भागना नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है. तो एक्सेप्टेंस में क्या चीज आती है पहले ये बताओ. हाउ टू एक्सेप्ट चेंज, क्या एक्सेप्ट करेंगे बताइए. You have positivity. The main thing is how to stay positive. You have to be positive. आप कहेंगे कि पॉजिटिव का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप पॉजिटिव से? यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, even if it is not. नहीं. पॉजिटिव का मतलब लाइक वी हैव टू लिव विद इट. लाइक अब कोरोना है तो है, हमको उसके साथ जीना ही पड़ेगा. जीना ही पड़ेगा. जीना ही है. हाँ, उससे हम क्या बेस्ट निकाल. हाँ ये है, दैट इज गुड. कि बीइंग पॉजिटिव डजंट मीन इट डजंट गिव यू द सॉल्यूशन. वो ये नहीं बोलता है कि सब पॉजिटिव है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, आंख बंद कर लो और मान के चलो. ऐसा नहीं है कि वो बिल्ली के सामने, कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए ना, तो अगर कबूतर आंख बंद कर ले तो भी बिल्ली तो सामने ही है ना. ऐसा तो नहीं, उसको खाएगी नहीं. राइट. ऐसे आंख बंद नहीं करना है. अब यह कि हाँ सामने बिल्ली है, देख लिया है खतरा है, तो खतरे को एक्सेप्ट कर लिया कि अब मुझे क्या करना है, कि इस सिचुएशन में बेस्ट में क्या कर सकता हूँ, वो हमें देखना है, उससे भागना नहीं है. देन सेकेंड लेवल कम्स एक्सेप्टिंग चेंज. देन कम्स द ब्रेन स्टॉर्मिंग. अब ब्रेन स्टॉर्म क्या करेंगे? कोई कुछ कहना चाह रहा है? एनीबडी? श्रेया वांट्स टू से समथिंग? हेलो. नो मैम, नो. ओके. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेकंड पार्ट में क्या है? विच एरियाज आर अफेक्टेड. जब चेंज आपके सामने आता है तो आप अपने आप से सवाल करेंगे, ये ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, सोचेंगे कि विच एरियाज ऑफ माय लाइफ आर अफेक्टेड विद बाय दिस चेंज. वो मेरा रिलेशनशिप है, मेरा वर्क है, या मेरा हेल्थ है. ठीक है, क्या चीज है, कौन सा एरिया है? मेरा फाइनेंसेस है, या मेरा स्पिरिचुअल जर्नी है, मेरा इमोशन है. What? Which area is affected? Then what needs to be addressed? अब अगर आप, हेलो, बीच में डिस्टर्बेंस है कुछ.
सपोज आपने वो एरिया चॉक आउट कर लिया, सारे लिख लीजिए एरियाज क्या क्या है. देन सेकेंड व्हाट यू विल डू कि व्हाट नीड्स टू बी एड्रेस. अब जैसे हेल्थ है, हेल्थ में बहुत सारी चीजें हो सकती है. कुछ चीजें आपको ऐसे लिखेंगे कि नहीं ऐसा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, उसको छोड़ देना है. इसमें से क्या चीज है जो मुझे एड्रेस करनी है वो लेना है. देन व्हाट आर द चैलेंजेस. अब उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में चैलेंजेस क्या है, वो चैलेंजेस ब्रेनस्टॉर्म करना है. समझ रहे ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेप्स हैं, क्या क्या चीजें करनी है आपको. सबसे पहले क्या एरिया अफेक्टेड है, दूसरा जो एरिया अफेक्टेड है उसमें से किस चीज में मुझे ध्यान देना जरूरी है, और ध्यान देने के लिए क्या क्या चैलेंजेस मेरे सामने हैं, और उन चैलेंजेस को सामने करने में मेरे सामने क्या ऑब्स्टेकल्स हैं या क्या फियर्स हैं, क्या डर है मेरे, और उन डर के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ. व्हाट आर द फियर्स एंड व्हाट कैन आई डू अबाउट इट. तो ये आपकी लॉन्ग लिस्ट बनेगी. आपको लेवल बाय लेवल करना है. लेवल 1 में जाइए, तीनों कीजिए, ABC ऑफ लेवल 1 कंप्लीट करना है, चेंज एक्सेप्ट करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है. देन यू कम इन द थर्ड पार्ट, C, चूज व्हाट हेल्प्स यू टू मूव फॉरवर्ड. और जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे ना तो आपके पास बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे कि यार ऐसा नहीं हुआ तो नहीं, उसके पास जाऊंगा तो वो तो हेल्प नहीं करने वाला, या ऐसा तो नहीं होगा. तो उन नेगेटिव थॉट्स को आपने वहीं छोड़ देना है. When you move to C, you have to choose what helps you to move forward. जो चीज आपको पीछे लौटने को नहीं बल्कि आगे बढ़ने को, या जो स्टेगनेंट नहीं कर रही है, रोक नहीं रही है, उससे आगे बढ़ने को बोल रही है, उस चीज को आपने एक्सेप्ट करना है, उसको चूज करना है. एंड यू हैव टू मूव टू द सेकेंड लेवल. ओके, second level also has ABC. In the second level of A, you have 4 things: ask, acquire, adjust and adapt. Ask what? अपने आप से पूछना है. क्या पूछेंगे? What do I need? मुझे क्या चाहिए. अभी आपने पहले चूज किया था ना कि आप क्या कर सकते हो, क्या चैलेंजेस हैं, क्या फियर्स हैं. तो उन सबसे लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, अपने आप को पूछिए. What do I need? Do I have what I need? मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे पैसा चाहिए, क्या मेरे पास पैसा है? अगर नहीं है, if not, then do I have someone who can help me? कि मैं पापा से ले सकता हूँ या फ्रेंड को बोल सकता हूँ, या नहीं, मुझे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है. No one. Then if not, then what I can do about it? क्या मैं लोन ले सकता हूँ, या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पहले जॉब करूं, कुछ पैसा जमा करूं और फिर उस बिजनेस के आइडिया पे जाऊं. ये सारे आपके आस्क क्वेश्चंस हो गए. आपने अपने आप से पूछे. क्या क्या पूछा? व्हाट डू आई नीड, डू आई हैव व्हाट आई नीड, इफ नॉट देन डू आई नो समवन हु कैन हेल्प मी, इफ नॉट देन व्हाट आई कैन डू. गेटिंग दिस पॉइंट? गेटिंग दिस? यस. कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है? ओके. नो. सेकेंड, कम टू एक्वायर. अब एक्वायर में क्या है? व्हाट यू कैन. अब इसमें से आप जो जो चाहिए, अभी तो आपको पता चल गया आपको क्या चाहिए. यू आस्क्ड व्हाट यू नीड, व्हाट इज नीडेड, एक्वायर दैट. उसके लिए स्टेप लो. स्किल चाहिए तो स्किल एक्वायर करो, हेल्प चाहिए तो हेल्प एक्वायर करो, कुछ और स्टेप लेना है तो वो करो. एंड देन एडजस्ट. अब क्या होगा, जब आप नई स्किल सीखेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, आप लोन लेंगे, आप कोई जॉब करेंगे, टू मीट दैट फर्स्ट नीड, क्या होगा? It is not, life is never a bed of roses. क्या सब कुछ इतना आसान होगा? नहीं होगा. So you will have to adjust. बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. Then do it and then adapt. कि उसमें अपने आप को ढाल लो अच्छी तरह से नए माहौल में. भले ही वो जॉब है, चाहे वो आपने कोई प्रोसेस शुरू किया है या आपने कोई नई स्किल सीखना शुरू किया है, whatever, adapt to it. Because that is going to lead you to your next step. After that, believe. Second level का B. Believe in yourself and the process. Challenges अपने आप पे भरोसा रखिए. I can do it. I am capable. If I lack something, I am capable of getting that. And the process. आप यहाँ पे आज बैठे हैं, अगर आपको बॉम्बे से दिल्ली आना है तो क्या आप दिल्ली पहुंच गया सोच के पहुंच सकते हो? पहुंच सकते हैं? नहीं मैम. नहीं पहुंच सकते, राइट? तो उसके पीछे क्या है? एक प्रोसेस है.
आपको पहले टिकट लेनी पड़ेगी, हो सकता है आप ट्रेन से कराना चाह रहे हो, एसी में करा रहे हैं, 3 टायर आपको नहीं मिला, आप 2 टायर ट्राई करो, नहीं मिला, बजट ज्यादा है, बट आपका जाना जरूरी है, यू विल से ओके चलो बाबा इस फर्स्ट क्लास में मिल जाए, थोड़ा पैसा ज्यादा जाएगा, नहीं मिला, फिर तो चलो यार फ्लाइट ट्राई करता हूँ, फ्लाइट में मिला, बहुत महंगा मिला, लेकिन जाना जरूरी है तो आपने लिया। अब फ्लाइट में जाने के लिए आपको घर से तो निकलना पड़ेगा ना, फिर से आपने कैब किया, कैब नहीं मिल रही है, मुश्किलें बहुत आएंगी, गाड़ी स्ट्राइक हो गई है, एनी हाउ मुझे पहुंचना है, तो फिर आप कुछ करोगे। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरी प्रोसेस है, और आप थक हार के आधे से ज्यादा लोग क्यों अपने मकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस को बीच में छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं प्रोसेस से, आई कांट डू इट। आप चाहे कोई भी नया जॉब कर रहे हैं, या आप कोई नया काम कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी वेंचर डालना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 3 साल मान के चलिए कि आपको स्ट्रगल करना ही है, लेकिन ज्यादातर लोग पहले साल में ही छोड़ देते हैं। आपका कोई ड्रीम है, आपको पूरा करना है। इवन अगर आप देखें क्रिकेटर्स को, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को, सचिन तेंदुलकर को आपने देखा है, तो क्या अगर जो लास्ट वो सेंचुरी बनाने के बाद भी वो अगले दिन आराम से नहीं सोता होगा कि मुझे अरे यार आज सेंचुरी हो गई, कल सो जा, सुबह उठ के वो फिर वापस 4 घंटा नेट पे प्रैक्टिस करेगा। क्यों? अगर नहीं करेगा तो उसको वो परफॉर्मेंस नहीं बनी रहेगी। ये प्रोसेस है। Believe in the process. So you have to believe in the process yourself as well as the process. Then comes to C. Now while you are going through the processes, you have to, कई बार आपको ऐसे demotivating factor आएंगे, आपके पास tempting factors आएंगे, लोग आपको टेम्पटेशन देंगे, छोड़ यार इसमें क्या रखा है, चल मेरे साथ ही मजा करते हैं, या कुछ इजी वे बताएंगे आपको। लेकिन सक्सेस कभी भी इजी नहीं होती है। देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर द सक्सेस, देयर आर नो शॉर्टकट्स। कोई एलिवेटर नहीं है, आपको लेडर से ही जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। सो चैलेंज योरसेल्फ टू हैव दैट स्ट्रेंथ टू क्लाइंब द स्टेयर्स। ठीक है, ये हो गया लेवल 2। नाउ कम टू लेवल 3। You have in third level, again ABC of third level. That is, sorry, first appreciate yourself. Appreciate for what? Look around. देखो कि आपने लेवल 1 के 3 के पार कर लिए हैं, लेवल 2 के 3 पार कर लिए हैं, तो लेवल 3 पे पहुंच गए हो। लुक, पीछे की जर्नी को याद करो और देखो आपने कितना प्रोग्रेस किया है। आप कल कहाँ थे, आज आप कहाँ हो। Then look around, see the people, those who helped you around throughout this journey. वो इसमें आपने नया क्या पा लिया है, आपने क्या चीजें हैं जो आपने नई सीख ली है, क्या चीजें हैं जो आप, कौन से लोग हैं जो आपको नए रिलेशनशिप आपके बन गए, कौन से नए फ्रेंड्स आपके बन गए हैं, वो सब चीजों को और जो आपने कलेक्ट किया है, आपका एक्सपीरियंसेस, वो खट्टा हो मीठा हो, अगर वो गलत एक्सपीरियंस है, मीन्स अगर वो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, बैड है, इवन देन इट इज हेल्पफुल फॉर यू, वो आपके लिए आगे के लिए लेसन है, लर्निंग है। So appreciate about everything what you have gathered, where you have reached, appreciate your journey and be grateful for the people. Reflect about the change and then ask yourself that how you can, अभी क्या है, जब आपने ये जर्नी की है तो इसमें बहुत सारे लोगों ने आपको हेल्प किया होगा। Here you need to, after reaching a third level, जो लोग नहीं करते हैं वो एक बार आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे लोगों को नहीं देखते, उनको हेल्प नहीं करते, कहते मैंने किया ना बेटा, अभी खुद कर। राइट? तो यहाँ देखिए कि जब आपको हेल्प मिली है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप देखें कि आप किसको हेल्प कर सकते हैं। देन बी द चेंज। गांधी जी ने कहा था बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम ये कहते रहते हैं कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या पार्क में घूम रहे हैं तो लोगों पे उंगली उठा देते, देखिए अभी भी पार्क में घूम रहे, पता चला भीड़ के चारों तरफ खड़े होकर बोलते क्या भीड़ लगा रखी है, और ये नहीं देखते खुद उस भीड़ का हिस्सा है। ठीक है, अब घायल पड़ा है तो हम कहते हैं कि देखो लोग कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे सामने है तो हम शायद नहीं उठाते हैं। तो हमें वो चेंज बनना है जो हम देखना चाहते हैं लोगों में, वो चेंज हमें बनना है। या अपने आसपास में, अपने माहौल में, अपने प्रोसेस में, अगर आप किसी अपने कलीग से दुखी हो, उसकी नेगेटिविटी से दुखी हो, उसके हेरेसमेंट से, या स्कूल में हो उसकी बुलिंग से दुखी हो, तो यू शुड एंश्योर कि आप किसी और के लिए वो रीजन नहीं हो जो वो आपके लिए रीजन है। ये आप थर्ड लेवल पे आके देखना है एंड देन कंटिन्यू। यहाँ पे आके आपको सारी प्रोसेसेस कंटिन्यू करनी है जो आपने अभी तक की है, एंड एंटिसिपेट चेंज अगेन। यहाँ पे आके फिर से एंटिसिपेट करना है और रेडी रहना है, बिकॉज चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज इनएविटेबल, ये होता रहेगा। आप उसको मानो या ना मानो, आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, आप महसूस करो या ना करो, चेंज हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। अगर आपने खुद को नहीं चेंज किया तो
फिर तो आप जानते हैं कि स्ट्रेस तो फिर इनएविटेबल है, उसने भी आना ही है. So here this stops my journey. You have to not see on the doors closed, but you have to see towards what is there. Let your imagination wander beyond the reach of your eyes. हम आधा समय तक हम क्या करते हैं, सालों गुजार देते हैं अपने पीछे पास्ट देखने में, और बार बार लौट के वही जाते हैं. Stop looking back and be grateful for what those doors has given to you, and look at the front, which new doors, new avenues are opening for you, and you will be grateful for everything what you have, and you will see most beautiful things coming out. I wanted to have one more activity of doors closed and doors open, but that's going to take time. उतना टाइम हमारे पास नहीं है, and that is also a lengthy process. तो वो फिर कभी के लिए रखते हैं. And now you know me. तो कभी भी आपको अगर लगता है कि आपको या आपके ग्रुप को, आपके फ्रेंड्स को इस तरह की किसी चीज की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, you can call me. Of course टाइम का डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा, कमिटमेंट देना पड़ेगा, but I am available. ठीक है? Yes, ma'am. So Roshni, I volunteer, and all of you, a great big thanks to all of you for this opportunity. I enjoyed sharing my experiences and my learning with you. To connect with me, I have my details over here, and feel free to write me, feel free to follow me, feel free to ask me. और रोशनी को बोल देना अगर मुझे नहीं बोलना है तो she will arrange again anything. Okay, hope you enjoyed.